السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز، جو کہ تحریر ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ یہ اس کا معمول بن چکا تھا، وہ ہر روز کالج سے واپسی پر تاشفین کو اسکول سے لے کر گھر آتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھا کر سو جاتے۔ ہمیشہ سبرینا کی آنکھ کھلنے سے پہلے تاشفین اپنا بیگ اٹھائے ڈاکٹر عافیہ کے پاس جا پہنچتا تھا۔ اس کی اور ڈاکٹر عافیہ کی بہت بنتی تھی، وہ ان سے بہت مانوس ہو چکا تھا، ڈاکٹر عافیہ کا ننھا دوست بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا ہوم ورک ڈاکٹر عافیہ کے پاس کرتا تھا، ان کے ہاسپٹل سے واپسی پر ان کے پاس جا کر ہی کیا کرتا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، سامنے کا دروازہ عبور کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں وہ دونوں اس وقت کارپیٹ پر بیٹھے تھے۔ تاشفین اپنی کتابیں اپنے ارد گرد پھیلائے درمیان میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھی ڈاکٹر عافیہ بہت غور سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ احد پر ان دونوں نے سر اٹھاتے سبرینا کی جانب دیکھا۔ سبرینا پر نظر پڑتے تاشفین نے ڈاکٹر عافیہ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں لکھا پیغام ڈاکٹر عافیہ جانتی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح سبرینا کی ڈانٹ سے بچا لینے کا پیغام تھا۔ سبرینا کو بغیر بتائے نیچے آنے پر جب بھی وہ اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتی تو وہ ہمیشہ ڈاکٹر عافیہ کو آگے کر دیتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں ان کے آگے خاموش ہو جایا کرتی۔ سبرینا آگے بڑھتے ان دونوں کے قریب آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر عافیہ کو سلام کرتے ان کے قریب بیٹھ گئی تھی، جبکہ تاشفین مزید کھسکتا ہوا ڈاکٹر عافیہ کے قریب ہوا تھا۔ سبرینا نے اپنی نظریں تاشفین پر جمائی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ڈاکٹر عافیہ بول پڑی، سبرینا، بچے کو مت ڈانٹنا۔ ہمیشہ کی طرح وہی جملہ، وہی بات۔ سبرینا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ نہیں ڈانٹتی امو جان۔ ڈاکٹر عافیہ کے کہنے پر سبرینا اب انہیں امو جان کے نام سے پکارنے لگی تھی، کیونکہ وہ اسے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب سبرینا نے پاس پڑے تاشفین کے بیگ میں ڈال دی تھی۔ سبرینا کی یہ کارروائی سامنے بیٹھے تاشفین نے بغور دیکھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا بیگ کے قریب آیا تھا اور وہ کتاب نکالتے اسے کھولنے لگا۔ وہ اس کے صفحے پلٹتا کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک کاغذ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ڈاکٹر عافیہ کی جانب بڑھا۔ امو جان یہ دیکھیں۔ اس نے 2 صفحے ڈاکٹر عافیہ کی جانب بڑھائے۔ اس نے وہ صفحہ ڈاکٹر عافیہ کی جانب بڑھایا۔ وہ تاشفین کا آج کا ٹیسٹ تھا جس میں اس کے پورے نمبر آئے تھے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ اس صفحے کی جانب دیکھتے ڈاکٹر عافیہ بھی مسکرانے لگی۔ سبرینا نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ میرے چیمپئن کے ٹیسٹ میں پورے نمبر آئے ہیں۔ سبرینا کی سوالیہ نگاہیں خود پر محسوس کرتے ڈاکٹر عافیہ بولنے لگی تھیں، جس پر سبرینا بھی مسکرانے لگی۔ ڈاکٹر عافیہ نے آگے بڑھے تاشفین کو اپنے ساتھ لگایا اور پھر اس کے دونوں گال چومے تھے۔ سبرینا کے لیے اب یہ معمول بننے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر عافیہ سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ اپنی ماں سے پہلے وہ ہمیشہ اپنی ہر کامیابی سے امو جان کو ہی دکھاتا، اور سبرینا کے لیے یہ بات بہت خوشی کی بات تھی۔ وہ اس کی مسیحا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی اولاد ڈاکٹر عافیہ جیسی شخصیت کی حامل ہو، ان جیسی رحم دل اور مہربان ہو۔ ڈاکٹر عافیہ نے تاشفین کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ آگے بڑھتا سبرینا کے پاس آیا تھا۔ سبرینا نے بھی اسے اپنے گلے لگاتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ شاباش میرا بچہ۔ سبرینا کے لبوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی زندگی کی ساری تلخیوں کا اثر دائل کرنے والا تاشفین ہی تو تھا، جو اس کے لیے سانس لینے جتنا اہم تھا۔ سبرینا، تم رضیہ کو بتا دو آج رات کھانے میں کیا بنانا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ نے سبرینا کو مخاطب کیا، جس پر سبرینا نے ان کی جانب دیکھا۔ جی امو جان، وہ یہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ تاشفین اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پر دوبارہ ڈاکٹر عافیہ کے قریب جا کر کام کرنے لگا تھا۔ سبرینا قدم اٹھاتی کچن کی جانب آئی تھی۔ شروع کے 2 ماہ تو وہ اور تاشفین صرف اوپر والے پوشن تک ہی محدود تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر عافیہ کے ملنسار رویے اور ان کے اصرار پر وہ ان سے گھلنے ملنے لگی تھی، اور انہی کے اصرار پر اب وہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے۔ آج مطلع ابر آلود تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کیفیٹیریا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پروفیسر سارا کی کلاس کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ امل نے اپنے ساتھ چلتی رتبہ سے پوچھا، جو گہرے نیلے رنگ کی شارٹ فراک کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے آج معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا گورا رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ 2 بجے کلاس شروع ہوگی، اور ختم کب ہوگی یہ تو وہی جانتے ہیں۔ رتبہ نے امل کی جانب دیکھتے جواب دیا، جو اس وقت سیاہ جینس کے ساتھ سفید رنگ کی ٹاپ پہنے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بالکل، امل کی آواز بوجھل تھی۔ وہ دونوں کیفیٹیریاز پہنچ چکی تھیں۔ تم ٹھیک ہو امل؟ وہاں پڑے ٹیبلز میں سے ایک پر اپنا بیگ رکھتے رتبہ نے امل کو مخاطب کیا۔
रतबा के सवाल पर अमल ने उसकी जानिब देखते इस बात में सर हिलाया था। हाँ ठीक हूँ, बस आज कुछ ज़्यादा ही थक गई। उसके चेहरे से थकान वाज़ेह थी। तो तुम घर चली जाओ। रतबा मुतफिक्र हुई। हाँ यही सोच रही। अमल की बात पर रतबा ने इस बात में सर हिला दिया और एक नज़र आसपास बैठे स्टूडेंट पर डाली थी जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थे। चट चटपटे खानों की खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी। अचानक अमल की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ओ माई गॉड रुतबा, क्या हुआ अमल? रुतबा ये कहते उसके करीब आई थी। रुतबा, प्रोफेसर याकूब का असाइनमेंट। अमल की बात सुनते रुतबा के चेहरे के तासुरात भी अमल से मुख्तलिफ नहीं थे। वो भी इसकी तरह जल्दी से अपना बैग खोलते कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों अपने हाथों में फाइल्स थामे बैठी थी। असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या थी? अमल के सवाल पर रुतबा अपना मोबाइल ऑन करते उस पर उंगलियां चलाने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मोबाइल स्क्रीन पर नजर आती एक तहरीर पढ़ते उसके तासुरात पुरसकून हुए। थैंक गॉड, आज लास्ट डेट है। रुतबा ने अमल को मुखातिब किया। रुतबा की बात सुनते अमल पुरसकून हुई थी। मैं तो अभी असाइनमेंट जमा करवाने जा रही हूँ। रुतबा ये कहते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रुतबा प्लीज़ मेरा असाइनमेंट भी ले जाओ, मुझ में एक कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं है। अमल की बात पर रुतबा ने उसके हाथों में मौजूद फाइल थामी थी। मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते रुतबा कदम उठाती डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ने लगी थी। उसके जाने के बाद अमल के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो रुतबा को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई। अमल के चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी तारी हो चुकी थी। वो पास पड़ा रुतबा का मोबाइल और बैग देखते माजी की तल्ख यादों में खोने लगी। माजी अमल अफंदी मशहूर MNA सत्तार अफंदी की इकलौती औलाद थी। वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले बच्चों में से थी। बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ उसकी नज़र को भा जाती वो उसके कदमों में ला दी जाती। वो एक खूबसूरत और बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। फयाज लाशारी और सत्तार अफंदी की दोस्ती के बायस वो बचपन से शहरियार लाशारी को जानती थी। गुजरते वक्त के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। रुतबा से उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी। अमल की जानिब दोस्ती का हाथ पहले रुतबा ने बढ़ाया था। अमल हमेशा दोस्त अपनी क्लास और स्टेटस के मुताबिक बनाती थी, मगर न जाने रुतबा में ऐसी क्या खास बात महसूस हुई कि उसने रुतबा का दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया था। मगर आज अमल इस बात को थाम लेने को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तस्वर करती थी। अभी उनकी दोस्ती इब्तदाई मराहिल में ही थी कि कुछ ऐसा हो गया जैसे सब खत्म हो गया था। अमल बचपन से ही अपने तायाजाद फारूक अफंदी को बहुत पसंद करती थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पसंदीदगी में इजाफा होता जा रहा था। वह उससे मोहब्बत करने लगी थी। दूसरी जानिब वो ये भी समझती थी कि वो जितनी मोहब्बत आफाक से करती है इतनी ही मोहब्बत वो भी अमल से करता है। मगर उसकी गलत फहमी बहुत बुरी तरह दूर हुई थी। वो एक दिन रुतबा को यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपने घर लाई थी ताकि उसे अपना आलीशान बंगला दिखा सके। मगर वहीं उसकी मुलाकात फारूक से हो गई। उसने फारूक से रुतबा का तारुफ करवाया। वो इस बात से अनजान थी कि ये तारुफ उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। कुछ दिन मजीद बहुत सुकून से गुजरे मगर एक रोज़ फारूक उसे अपने साथ लंच पर लेकर गया। वो बहुत खुश थी। शायद आज वो उसे अपने दिल का हाल बताएगा। मगर फारूक के दिल का हाल तो जानने के बाद अमल को उस रेस्टोरेंट की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई थी। उसे आज भी फारूक के वो अल्फाज याद थे। अमल, मुझे तुम्हारी दोस्त रुतबा बहुत अच्छी लगी। मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम उसमें मेरी मदद करोगी? इन अल्फाज ने अमल के दिल को टुकड़ों में तकसीम कर डाला था। बचपन से लेकर आज तक अपनी हर पसंदीदा चीज़ को हासिल करने वाली अमल से आज उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी। वो 2 दिन अपने कमरे में बंद रोती रही, मगर फिर उसके अंदर मौजूद अमल बेदार हुई थी, जिसको आज तक रुतबा ने देखा नहीं था। अगले दिन उसने यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में सबके सामने रुतबा पर इल्ज़ाम लगाते उसके किरदार पर कीचड़ उछाला था। दूसरी जानिब रुतबा उसकी एक भी बात समझने से कासिर थी। अमल अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो देख भी नहीं पाई। उस दिन स्टूडेंट्स के इस मजमे में वो भी खड़ा था। उस दिन फारूक वहाँ मौजूद था। उसने अमल की एक एक बात सुनी थी। अमल की ज़ुबान ने जब अंगारे बरसाना बंद किए तो रुतबा का जवाब दे गया था और वो रोते हुए अपने घर वापस आ गई थी। मगर वहीं अमल का सामना फारूक से हुआ और अब अमल की ज़ुबान को गोया ताला लग चुका था। मुझे तुमसे हरगिज़ की उम्मीद नहीं थी अमल। तुम अपने हसद की आग में इस कदर बढ़ जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। शेम ऑन यू अमल। ये अल्फाज आज भी अमल के कानों में कोड़ों की मानंद बरसते थे। 2 माह तो वो शदीद डिप्रेशन का शिकार रही, मगर फिर एक दिन उसकी मुलाकात शहरियार से हुई। उसकी बातों ने अमल पर गहरा असर डाला था। वो दोनों एक ही इंसान से बदला लेना चाहते थे। शहरियार ने उसे अपने बनाए गए सारे प्लान के बारे में आगाह किया था।
اس کا ساتھ مانگا، جس پر عمل نے رضامندی کا اظہار کرتے اسے ہاتھ ملایا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بار عمل نے رتبہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ چند موٹے موٹے آنسو بہاتے اس نے معافی مانگی اور اپنی محبت کی دکھ بھری داستان سنائی تھی۔ دوسری جانب رتبہ نے بنا سوچے سمجھے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمل رتبہ کا اعتبار واپس جیتنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اب صرف رتبہ صدیقی کو برباد کرنا تھا، پوری طرح برباد۔ حال میں واپس لوٹتے اس نے پاس پڑا رتبہ کا موبائل اٹھایا اور ایک نظر ادھر ادھر دیکھتے وہ اس موبائل پر تیز تیز انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ اس وقت گراؤنڈ میں لگے بینچز میں سے ایک پر بیٹھا احد کا منتظر تھا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا احد کو ڈھونڈ رہا تھا، جو 5 منٹ کا کہہ کر 20 منٹ بعد بھی نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے میں ہی مصروف تھا کہ اچانک اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر سے گزرتی رتبہ پر پڑی تھی۔ رتبہ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات سرد پڑنے لگے تھے، آنکھوں میں انتقام کی آگ جلنے لگی تھی۔ آج بھی وہ دن یاد تھا جس دن رتبہ کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بے عزت ہوا تھا۔ وہ اس دن کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ خود اس دن کو بھلانا چاہتا تھا۔ وہ وہیں اس بینچ پر بیٹھا ایک بار پھر اس دن ہونے والے واقعے میں کھونے لگا تھا۔ ماضی یونیورسٹی میں نئے سیشن کا آغاز ہوا تھا اور ہر جانب نئے اسٹوڈنٹس کا رش تھا، جن کے چہروں پر چھائے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ہیں۔ شہریار اور اس کے کچھ دوست نیو اسٹوڈنٹس کی ریگنگ کرنے میں مصروف تھے۔ شہریار اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت گراؤنڈ میں موجود کچھ نئے اسٹوڈنٹس کے گروپ کے گرد چکر کاٹتے انہیں تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ان اسٹوڈنٹس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ ان لڑکیوں میں رتبہ صدیقی بھی تھی۔ وہاں موجود تمام لڑکوں کو مختلف ٹاسک دیتے وہ ان پر ہنس رہے تھے۔ اب باری لڑکیوں کی تھی۔ گرلز تھوڑا آگے آ جاؤ، اب تم سب کی باری ہے، شہریار کے دائیں جانب کھڑا ایک لڑکا بولا تھا۔ سب سے پہلی باری اس گلابی دوپٹے والی کی ہوگی۔ شہریار نے ان لڑکیوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا تھا جس کے بائیں جانب رتبہ کھڑی تھی۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ ان کے آس پاس بہت سے اسٹوڈنٹس جمع ہو چکے تھے۔ حسینہ ذرا اپنا نام تو بتاؤ، ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا لو پرانہ انداز میں بولا تھا۔ ہانیہ، وہ لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ واہ، نام تو بہت اچھا ہے، وہی لڑکا کچھ قدم آگے بڑھتا بولا۔ چلو شہریار بتاؤ کہ ہانیہ ہمیں کیا کر کے دکھائے گی؟ وہ اس لڑکی کا نام پر زور دیتا بولا۔ یہ آنکھیں بند کر کے اس گراؤنڈ کے پورے 2 چکر لگائے گی۔ شہریار کی بات پر وہ لڑکی اس کی جانب دیکھتے بولنے لگی۔ یہ میں نہیں کر سکتی۔ کرنا تو پڑے گا۔ وہ سب اس لڑکی کو مجبور کرنے لگے، جبکہ وہ لڑکی مسلسل انکار کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے پیچھے کھڑی رتبہ اب مزید برداشت نہیں کر سکی اور قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتی تو تم لوگ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ رتبہ کی آواز پر وہاں موجود سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، تمہاری باری تو ابھی آئے گی۔ شہریار کے دائیں جانب کھڑا لڑکا اسے مخاطب کرتا بولا۔ ہانیہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس لڑکے کی بات کو نظر انداز کرتے بولی۔ اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو جو کام ہم نے اس کو دیا ہے وہ تم کر دو۔ بلکہ شہریار رتبہ کی ہمت دیکھتا ہوا بولا۔ بلکہ ایک کام کرو، یہ بوتل پکڑو۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں موجود پانی سے بھری بوتل رتبہ کی جانب بڑھائی تھی۔ ارے پکڑو تو صحیح۔ شہریار کے دوبارہ کہنے پر رتبہ نے ہاتھ بڑھاتے وہ بوتل پکڑ لی تھی۔ شاباش، اب یہ پانی اپنی اس پیاری دوست پر ڈال دو۔ شہریار یہ کہتا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ ہری اپ، ہری اپ، رتبہ کو مسلسل کھڑے دیکھ کر شہریار بولا۔ اس کے دوبارہ بولنے پر رتبہ نے کچھ قدم آگے بڑھاتے وہ پانی کی بوتل شہریار کے سر پر ڈال دی تھی۔ پانی شہریار کے چہرے اور کپڑوں کو بھگونے لگا۔ رتبہ کو اس کی حرکت پر وہاں کھڑے تمام اسٹوڈنٹس حیران رہ گئے۔ شہریار تیزی سے پیچھے ہٹا۔ لو، ڈال دیا پانی۔ رتبہ پانی کی خالی بوتل زور سے زمین پر مارتے بولی۔ اے لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ شہریار کا چہرہ غصے سے لال پڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس وقت اس کی اوقات یاد دلا دے۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی کہ تم کون ہو، مگر آئندہ کسی لڑکی کو تنگ کرنے سے پہلے اپنی یہ ذلت یاد رکھنا۔ رتبہ یہ بولتے ہانیہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہاں کھڑے شہریار نے ایک نظر اپنے ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس پر ڈالی جن کے چہروں پر موجود تمسخرانہ ہنسی اس کے غصے میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ وہ اس گراؤنڈ میں دوسروں کا مذاق بنانے آیا تھا، مگر وہ لڑکی سب کے سامنے اس کا مذاق بنا کر چلی گئی۔
उस दिन से शहरयार के अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। वो रुतबा को सबके सामने वैसे ही बेइज्जत करना चाहता था। वो सही वक्त का मुंतज़िर था। जब उसे अमल और रुतबा वाले वाक़े का इल्म हुआ, उसे अपने इंतकाम लेने का एक और रास्ता मिल गया था। जबकि दूसरी जानिब रुतबा शहरयार की खामोशी से पहले तो हैरान हुई थी, क्योंकि उसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, मगर शहरयार की जानिब से मुकम्मल खामोशी पर वो पुरसकून हो चुकी थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रुतबा निडर मगर बहुत बेवकूफ़ थी। शहरयार को इन ख्यालों से आहत की आवाज़ ने निकाला था। आज इस बेंच पर बैठे शहरयार के दिल में रुतबा के लिए नफरत में एक बार फिर इजाफा हुआ था। शहर कराची में इस वक्त रात छा चुकी थी। चांद भी कुछ देर अपनी हाजिरी लगवा कर अब जा चुका था। वो इस वक्त लाउंज में बैठी फाइल में रखे पेपर चेक कर रही थी। जहन में ख्याल नमूदार होते उसने घड़ी की जानिब देखा, जो रात के 11 बजा रही थी। वो अपनी जगह से उठी, कमरे की जानिब बढ़ी थी। कमरे में दाखिल होते उसकी निगाह बेड पर लेटे ताशफीन पर पड़ी थी, जिसका चेहरा इस वक्त एक किताब के नीचे छुपा था। सबरीना ने आगे बढ़ते वो किताब उसके चेहरे से हटाई। वो सो चुका था। सबरीना ने मुस्कुराते उसकी किताब साइड टेबल पर रखी और पास पड़ी चादर ताशफीन के ऊपर डाल दी थी। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल समेटे कमरे की लाइट बंद करते बाहर आ गई। वापस लाउंज में आते वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। सबरीना के लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढले थे। उसे मालूम था कि आने वाला कौन है। वो अपनी जगह से उठती दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने डॉक्टर आफिया हल्के आसमानी रंग की शॉल ओढ़े खड़ी थी। डॉक्टर आफिया के अंदर दाखिल होने पर सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। आप बैठे अम्मू जान, मैं अभी चाय बनाकर लाती। सबरीना ये बोलते किचन की जानिब बढ़ गई थी। डॉक्टर आफिया उसकी बात पर सर हिलाते सोफे पर जा बैठी। ये इन दोनों का मामूल था। वो दोनों हर रोज़ इस वक्त साथ बैठकर चाय पीती और दिन भर की रुदात एक दूसरे को सुनाती। कुछ देर बाद सबरीना एक ट्रे थामे किचन में वापस आई थी। ट्रे में चाय के 2 भाप उड़ाते कप मौजूद थे। ट्रे टेबल पर रखते हुए उसके सामने वाले सोफे पर जा बैठी। ताशफीन सो गया? डॉक्टर आफिया ने सबरीना को मुखातिब किया, जो पास पड़े पेपर फाइल में रख रही थी। जी अम्मू जान, बस अभी कुछ देर पहले ही सोया है। सबरीना ने फाइल बंद करके एक जानिब रखते उन्हें जवाब दिया था। सबरीना, मुझे आज तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। डॉक्टर आफिया की बात पर सबरीना की नज़रें बेसाख्ता उनकी जानिब उठी थीं। उनका चेहरा भी उनके लहजे की तरह संजीदा था। जी अम्मू जान, कहें। वो चाय का एक कप उनकी जानिब बढ़ाते बोली। ताशमीन अब बड़ा हो रहा है सबरीना। वो एक लम्हे को रुकी। अगले माह वो पूरे 10 बरस का हो जाएगा। वो खामोश होते सबरीना के चेहरे के तासुरात देखने लगी। अम्मू जान, आपको जो भी कहना है खुलकर कहें। वो बमुश्किल मुस्कुराते बोली। उसका दिमाग उलझने लगा था। देखो सबरीना, मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुनना। सबरीना की बात के जवाब में वो बोलने लगी। अब तुम्हें ताशमीन को उसके बाप के बारे में हकीकत बता देनी चाहिए। सबरीना ने अपनी निगाहें उठाते उनकी जानिब देखा, मगर खामोश रही। मुझे मालूम है अभी वो इन मामलात को समझने के लिए छोटा है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी तो खुद को इसके मुतवक्किर रद्द-ए-अमल के लिए तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा। वो खामोश हो गई थी। मगर अम्मू जान, मैं, उसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की वजह से उसकी ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़े। उसकी ज़िंदगी मुतासिर, मगर उसकी ज़िंदगी तो पहले ही मुतासिर हो चुकी है सबरीना। उनकी बात पर सबरीना ने नज़रें चुराई थी। वो अपने बाप के जिंदा होते भी यतीम है सबरीना। क्या इससे ज़्यादा भी उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है? सबरीना के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। अम्मू जान, सबरीना ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसकी आवाज़ रोने लगी थी। मैं अपनी औलाद की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरे तारीख माजी का इल्म भी हो। मैं अपने माँ बाप की मौत की जिम्मेदार हूँ। सबरीना, जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते, पर अगर हम वक्त माजी के ज़ेर असर रहेंगे तो फिर ये सोचते रहेंगे कि कहीं हमारा तारीख माजी हमारे रोशन हाल को निगल ना जाए, तो हमें कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वो सबरीना की जानिब देखते कह रही थी, जो निगाहें झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बात के जवाब में सबरीना खामोश रही। मैं अक्सर हैरान होती हूँ सबरीना कि तुम जैसी समझदार लड़की कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है। उनकी बात पर सबरीना ने अपना झुका हुआ सर उठाया था। उनका इशारा किस जानिब था वो समझ चुकी थी। चाहे जाने का एहसास बहुत खुशगवार और ताकतवर होता है अम्मू जान। ये इंसान से वो काम भी करवा देता है जो इंसान कभी ना करने का इरादा रखता। मगर फिर भी सबरीना, हम तकरीबन रोज़ ऐसे मामलात के बारे में सुनते हैं कि घर से भागी हुई लड़कियां किन मसाइब से गुजरती हैं। उनके हालात लोगों के लिए इबरत ही तो होते हैं। उनकी बात पर सबरीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में तलखी थी। अम्मू जान, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कोई किसी के अंजाम से इबरत हासिल नहीं करता। वो रुकी और फिर बोली थी।
इंसान महज अपनी गलती से सीखता है। अगर किसी की गलती से उसे नसीहत या इबरत मिलती तो एक फांसी पर जुर्म जड़े खत्म हो जाता। सबरीना की बात दुरुस्त थी, हम कहाँ किसी के अंजाम से सीखते हैं। अगर बड़े मामलात की जानिब ना भी जाया जाए तो एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सिगरेट का इस्तेमाल इंसान को मौत के मुंह में धकेल देता है। 80 लाख लोग तंबाकू नोशी की वजह से मौत को गले लगाते हैं, मगर इसके बावजूद आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ सिगरेट है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। सड़क पर होने वाले हादसात की सबसे बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी और कवानीन की खिलाफ वर्जी। हर रोज़ न जाने कितने लोग इन हादसात में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहाँ हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इन हादसात की नज़र में अपनी जान हाथ से धो बैठते हैं। मगर क्या इन सब के बावजूद भी हम किसी के अंजाम से सबक सीखते हैं? मुझे मुझे बहुत वक्त लग जाएगा मुजान इसे सब हकीकत बताने में। दोनों के दरमियान छाई खामोशी को सबरीना की आवाज़ ने तोड़ा था। इसीलिए तो कह रही हूँ सबरीना कि आज से ही खुद को तैयार करना शुरू कर दो, ताकि जब वो हर चीज़ समझने के काबिल हो जाए तो तुम उसे सब मामलात सच बता सको। क्योंकि वो रुकी थी। ये बहुत बेहतर होगा कि वो सब सच्चाई उसे तुम बताओ, बजाय इसके कि ये बात उसे किसी और से मालूम हो। उनकी बात पर सबरीना ने इस बात में सर हिलाया। सामने पड़ी चाय से भरे कप अब ठंडे हो चुके थे। मैं चाय गर्म करके लाती। सबरीना खामोशी से उठ खड़ी हुई और ट्रे उठाते किचन की जानिब चली गई। डॉक्टर आफिया को मालूम था कि ये सब उसके लिए कितना मुश्किल है, मगर चाहती थी कि वो मजबूत बने, इतनी मजबूत कि जालिम माशरे की कोई भी सख्ती उसे कमज़ोर न कर सके। वो इस वक्त किचन में मौजूद थी। आखिरी बर्तन धोकर उसने नल बंद किया कि उसकी समात से प्रेशर कुकर की आवाज़ टकराई थी। तेज़ी से आगे बढ़ते उसने चूल्हा बंद किया और फ्रिज की जानिब बढ़ गई थी। फ्रिज से सफ़ेद रंग का डब्बा बाहर निकालकर शेल्फ पर रख दे उसने एक नज़र किचन पर डाली और कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाह फर्श पर बैठे ताशमीन पर पड़ी थी, जिसे देखते उसके माथे पर बल नमूदार हुए। ताशमीन, ये तुम क्या कर रहे हो? पूरा घंटा होने वाला है और तुम अभी तक नहाने नहीं गए। वो गुस्से से बोलती उसके करीब आई थी। सबरीना की आवाज़ पर ताशमीन फौरन अपने सामने पड़े कागज़ समेटने लगा। बस अम्मी 10 मिनट और दे दें, फिर मैं नहा लूँगा। वो सारे कागज़ समेट कर एक जानिब रखते एक कागज़ पर झुककर कुछ लिखने लगा था। मगर फिर भी बताओ तो सही कि तुम तब से क्या करने में मसरूफ़ हो। वो उसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठी। उसकी बात पर ताशमीन ने अपनी झुकी गर्दन उठाते सबरीना की जानिब देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक खुशगवार चमक थी। मैं कार्ड बना रहा हूँ अम्मी। वो मुस्कुराते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। कार्ड्स? मगर किस लिए? सबरीना के पूछने पर इस बार ताशमीन ने बगैर गर्दन उठाए उसे जवाब दिया था। अपने दोस्तों के लिए। कौन से दोस्त? इस बार सबरीना उलझन का शिकार हुई। अम्मा जान के घर मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं ना, उनके लिए। ताशमीन की बात पर सबरीना की सारी उलझन एकदम दूर हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि ताशमीन किसकी बात कर रहा है। वो ताशमीन को देखने लगी जो बहुत खुशी और लगन से अपने काम में मसरूफ़ था। बिल्कुल ऐसी ही खुशी वो पिछले 1 हफ्ते से अम्मा जान के चेहरे पर भी देख रही थी, क्योंकि उनका बेटा पूरे 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहा था। डॉक्टर आफिया का ताल्लुक वादी हुंजा से था और उनके शौहर आफरीदी थे। शौहर की वफ़ात के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी औलाद की परवरिश की थी। उनका बेटा साइम आफरीदी भी पेशे के लिहाज से डॉक्टर था, जिसने अपनी तालीम भी बैरून मुल्क से हासिल की थी। वो वहीं की एक मुसलमान लड़की जो उसकी कोलीग भी थी, अम्मू जान की रजामंदी के साथ उससे शादी कर चुका था। शादी के बाद वो पहली बार पाकिस्तान अपनी बीवी के साथ अपने बेटे की पैदाइश पर आया था और अब 3 साल बाद अल्लाह ने एक और रहमत से उन्हें नवाजा था। सबरीना अम्मू जान की खुशी में खुश थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर, एक खौफ मौजूद था, जिसकी वजह से वो खुद अनजान थी। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान पर छाई रोशनी मद्धम होने लगी थी। सूरज बखूबी अपना फ़र्ज़ अंजाम देते रुखसत हो चुका था। वो टैक्सी से उतरती कुछ कदम पैदल चलते गेट के करीब आई और बेल के बटन पर हाथ रखा। कुछ लम्हे बाद हुर्रम ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते वो अंदर दाखिल हुई। लाउंज में पहुंचते उसकी नज़र सामने कारपेट पर लेटी रुतबा पर पड़ी, जबकि इसबा उसके साथ बैठी थी। वो दोनों बहुत इन्हिमाक से स्क्रीन पर लगा ड्रामा देख रही थीं। आबरू के सलाम करने पर इसबा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। इससे पहले कि इसबा कुछ कहती आबरू बोलने लगी। अम्मी कहाँ हैं? आबरू ने इसबा को मुखातिब किया। अम्मी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। इसबा उसे जवाब देते किचन की जानिब बढ़ गई थी। आबरू ने एक नज़र रुतबा पर डाली, जो अभी तक स्क्रीन पर नज़र आने वाले सीन्स देखने में मसरूफ़ थी। उसे इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। आबरू नफ़ी में सर हिलाते अपने कमरे की जानिब चली गई। अपने हाथ में मौजूद फाइल्स को टेबल पर पड़ी बाकी फाइल्स के साथ रखते वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो स्याह रंग के ट्राउज़र के साथ हल्के सब्ज रंग की कमीज़ पहने बाहर आई थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी।
ड्रेसिंग टेबल के सामने आते उसने अपने बालों में लगा क्लिप उतार कर सामने रखा था और ब्रश उठाते अपने बालों में फेरने लगी। बालों का रफ्सा जूड़ा बनाते वो सालिया बेगम के कमरे की जानिब चली गई। कमरे में दाखिल होते उसने उन्हें सलाम किया। बेड पर जा बैठी। जयनमाज पर बैठी सालिया बेगम दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। चेहरे पर फेरते उठ खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? आबरू ने उनकी जानिब देखते सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, तुम सुनाओ सभी खैरियत थी? आज इतनी देर हो गई। वो नमाज तह करके एक जानिब रखते बोली। जी अम्मी सब खैरियत है, बस आज एक क्लाइंट से मिलना था इसीलिए देर हो गई। वो साइड टेबल पर बड़ी तस्बीह पकड़ते बोली। सालिया बेगम भी आबरू के साथ बेड पर आ बैठी। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? आबरू के सवाल पर सालिया बेगम ने उसके चेहरे की जानिब देखा जो आज मामूल से ज़्यादा संजीदा लग रहा था। हाँ पूछो। क्या किसी औरत के नसीब में लिखे दुखों और तकलीफ़ों से उसके पास मौजूद दौलत बचा सकती? आबरू ने सवाल करते सालिया बेगम की जानिब देखा जो कुछ लम्हे खामोश रही। नहीं बेटा, इंसान के नसीब में लिखी तकलीफ़ों से उसे कोई चीज़ नहीं बचा सकती, दौलत तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी आवाज़ में तासुब था। उनकी बात पर आबरू के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट दर आई थी। आबरू सब खैरियत है ना? सालिया बेगम के सवाल पर आबरू ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और आगे बढ़ते उनका हाथ अपने हाथों में लेते बोलने लगी थी। जी अम्मी सब खैर है, बस आज जो मेरी क्लाइंट थी जिससे मैं अभी मिलकर आ रही हूँ उसकी कहानी ने थोड़ा परेशान कर दिया। वो रुकी और सालिया बेगम की जानिब देखा जो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। रुशना एक 30 साल पढ़ी लिखी खूबसूरत औरत है। अल्लाह ने उसे दुनिया की हर दौलत से नवाजा है। उसके सर पर बाप का साया मौजूद है, भाइयों का आसरा है उसे, मगर फिर भी अम्मी उसे उसके नसीब ने हरा दिया। आबरू अपना सर सालिया बेगम की गोद में रख के लेट गई थी। उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने उसे नेमत और रहमत दोनों से नवाजा है, मगर आबरू ने गहरी सांस ली। मगर फिर भी वो एक बदनसीब बीवी है जिसका शौहर उसकी और उसकी औलाद के होते हुए बाहर अय्याशियाँ करता है। उसकी बहुत सी औरतों से ताल्लुकात हैं। सिर्फ यही नहीं अम्मी, वो हर किस्म का नशा करता है और बहुत बार तो नशे की हालत में अपनी बीवी पर हाथ भी उठा चुका है। और आज जब वो औरत और उसके घर वाले खुला का मुतालबा कर रहे तो खुला पर राजी नहीं। उसकी शर्त है कि बच्चे अपने साथ रखेगा। आबरू वापस अपनी जगह पर उठ बैठी थी और बहुत परेशान थी अम्मी। वो अपनी औलाद को इस शख्स के हवाले हरगिज़ नहीं करना चाहती। आबरू सालिया बेगम की जानिब देखते बोल रही थी, जो चेहरे पर परेशानी के तासुरात लिए उसकी बातें सुन रही थी। रुशना के भाई ने बहुत से वकीलों से बात की, मगर न जाने क्यों कोई भी उनका केस लेने को तैयार ही नहीं। सब एक ही बात कह रहे हैं कि सरफराज यानी रुशना का शौहर बहुत पैसे वाला है, वो कभी भी रुशना को ये केस जीतने नहीं देगा। आबरू खामोश हो गई थी। तो तुम अब क्या करोगी आबरू? सालिया बेगम के पूछने पर आबरू के चेहरे के तासुरात बदले थे। मैं ये केस लड़ूंगी अम्मी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि रुशना को इंसाफ दिला सकूं, उसे उसकी औलाद और उसकी शख्स से छुटकारा दोनों हासिल हो जाएं। आबरू के लहजे पर सालिया बेगम मुस्कुराई, मगर फिर उनके चेहरे पर फिक्र के तासुरात उभरे थे। तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा आबरू? वो मुतफिक्र लहजे में बोली। नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। आबरू ने मुस्कुराते हुए सालिया बेगम को तसल्ली दी। अम्मी आपकी हफ्सा आपी से बात हुई? वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब करते बोली थी। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, वो शायद आज मुझे कॉल कर रही थी, पर मसरूफियत की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकी, तो मुझे लगा शायद आपकी उनसे बात हो गई। आबरू की बात पर सालिया बेगम बोलने लगी। मुझे हफ्सा का नंबर मिला कर दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अल्लाह करे सब खैर हो। सालिया बेगम की बात पर आबरू इस बात में सर हिलाते हफ्सा को कॉल करने लगी। कराची का मौसम आज काफ़ी खुशगवार था। आसमान पर बादलों का बसेरा था। हल्की और ठंडी हवा ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। सब इस वक्त लाउंज में बैठे थे। सामने रखे बड़े सोफे पर अम्मू जान बैठी थी, जिनकी गोद में गुलाबी कंबल में लिपटी एक छोटी सी गुड़िया मौजूद थी, जो इस वक्त सुकून से सो रही थी, जबकि उनके दाएं जानिब उनका बेटा मौजूद था। सामने रखे 2 सोफ़ों में से एक पर सबरीना, जबकि दूसरे सोफे पर हलीमा यानी अम्मू जान की बहू बैठी थी, जिसकी गोद में एक 3 साला बच्चा मुंह में फीडर डाले बैठा था, जो बहुत गौर से आसपास मौजूद चीज़ों और इंसानों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। जबकि ताशमीन सबरीना के सोफ़े के साथ खड़ा मुसलसल इस छोटे बच्चे की नज़रें खुद पर महसूस करता कंफ्यूज हो रहा था। वो इन दोनों बच्चों को देखते पहले ही हैरत में मुब्तला था, क्योंकि इन 2 दोस्तों का इसके दिमाग में बना बनाया गया खाका बिल्कुल गलत साबित हुआ था। सबरीना का तारुफ अम्मू जान उसके आने से पहले ही करवा चुकी थी, और इस बात का अंदाज़ा सबरीना को उन दोनों के खुशगवार रवैये से बखूबी हो गया था। ज़ावियार सिर्फ 2 माह का था जब ये दोनों वापस चले गए थे।
अम्मू जान ने जावियार की जानिब देखते कहा, जो बहुत गौर से अम्मू जान को देख रहा था। अब तो आ गए हैं ना अम्मू जान। साइम ने यह कहते अम्मू जान को अपने साथ लगा लिया था। और इस बार हम पूरे 4 माह की छुट्टी लेकर आए। इस बार बोलने वाली हलीमा थी। उसकी उर्दू बहुत साफ थी। छुट्टी ना भी लेकर आए हो तो मैं इस बार तुम लोगों को जाने ही ना देती। अम्मू जान की बात पर वो दोनों हंसने लगे। इतने में हलीमा की गोद में बैठे जावियार को न जाने क्या सूझी कि वो अपनी माँ की गोद से उतरता ताशमीन की जानिब चला गया। जावियार को अपनी जानिब आता देखकर न जाने क्यों ताशमीन घबराने लगा था। इन दोनों की ये हरकतें वहाँ बैठे वो सब बहुत गौर से देख रहे थे। जावियार ने ऐन उसके सामने पहुँचते एक भरपूर नज़र ताशमीन के चेहरे पर डाली, जो बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर अपना हाथ उठाते उसकी शर्ट की पॉकेट में मौजूद पेन पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर कद छोटा होने के बायस वो पेन उसकी पहुंच से दूर था। गिव इट टू मी, वो अपने बारीक सी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ पर ताशमीन ने अपना पेन अपनी पॉकेट से निकालते उसे पकड़ा दिया था, जिसे लेते जावियार मुस्कुराया, जैसे उसके सरमई आंखें चमकी थीं। ताशमीन से पेन लेते वो अम्मू जान के साथ मौजूद खाली जगह पर जा बैठा। इसे इस नाम में अम्मू जान की गोद में मौजूद नूरे फजर रोने लगी थी। लगता है इसे भूख लगी है। कुछ देर उसे चुप करवाने के बाद जब वो रोती रही तो अम्मा जान बोली, लाएं इसे मुझे दे दें। हलीमा ने हाथ आगे बढ़ाते नूरे फजर को पकड़ना चाहा कि अचानक जावियार, जो कि सब देखने में मसरूफ था, अपनी जगह छोड़ता भागा और वापस हलीमा की गोद में आ बैठा। जावी बेटा, बहना को भूख लगी, शाबाश मेरे पास आ जाओ। साइम ने जावियार को पिचकारते हुए हटाना चाहा था, मगर जावियार मजीद फैलते हुए हलीमा की गोद में लेटने लगा, जिस पर हलीमा हंसने लगी थी। ये हमेशा ऐसे ही करता है। जब से फजर पैदा हुई है इसके अंदर पता नहीं कौन सी हिस्स बेदार हो गई कि जब भी हलीमा फजर को पकड़ने लगे इसे अपने साथ मसरूफ कर लेता है। साइम वजाहत देने लगा, जावियार बेटा, पापा की बात मानो, शाबाश। इस बार हलीमा ने जावियार को अपनी गोद से हटाना चाहा, जिस पर जावियार ने हलीमा का हाथ अपने नन्हे हाथ से झटका, मगर जब हलीमा ने दोबारा उसे अपनी गोद से हटाया तो वो गुस्से भरी नज़र उस पर डालता उसकी गोद से उतरा और फिर अपना फीडर टेबल पर जोर से फेंकते दीवार की जानिब बढ़ने लगा था और वहाँ कारपेट पर बैठते उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगा लिया था और अपना सर उन पर रख दिया। वो सब इस छोटे से बच्चे की कार्रवाइयाँ देख रहे थे। अरे ये जावियार को क्या हुआ? अम्मू जान मुतफक्किर लहजे में बोली। कुछ नहीं अम्मू जान, इसकी तो आदत है, अभी कुछ देर बाद देखिएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। साइम ने नूरे फजर को हलीमा को पकड़ाते कहा। उसकी इस बात पर अम्मू जान मुस्कुराई, जबकि सबरीना के पास खड़ा ताशमीन बहुत गौर से जावियार को देख रहा था, जो एक साइड से अपना सर ऊपर किए एक आंख से कमरे का जायजा लेने में मसरूफ था कि अचानक उसकी निगाह ताशमीन पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। ताशमीन पर निगाह पड़ते ही जावियार ने अपना सर पूरी तरह अपने घुटनों पर रख लिया था। उसकी इस हरकत पर ताशमीन मुस्कुराया था। उसे ये छोटा सा बच्चा बहुत अजीब मगर अच्छा लगा था। आज मौसम काफ़ी गर्म था। आसमान पर बादल ना होने के बराबर। दरख्तों के पत्ते साकित थे। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने सामने पड़ी फाइल में से एक फाइल उठा ली। उस पर दर्ज नाम पर एक निगाह डालते उसने वो फाइल खोली और इसमें दर्ज तफसीलात का जायजा लेने लगी। उसने अभी फाइल का पहला सफ़ा ही पलटा था कि उसकी समात पर दस्तक की आवाज़ टकराई थी। उसने अपना सर उठाते सामने देखा, जहाँ दरवाजे पर कोई शख्स मौजूद था। यकीनन दस्तक देने वाला भी वही था। स्याह जीन्स के साथ स्याह शर्ट पहने, बालों को हमेशा की तरह पोनी में कैद किए वो शाहजैन लाशारी था। आबरू की नज़र खुद पर पड़ती देख वो कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ और एन आबरू के सामने वाली कुर्सी पर टांग रखे बैठ गया था, जबकि दूसरी जानिब आबरू ये सोच रही थी कि इसके इस चेहरे को पहले कहाँ देख चुकी है। शाहजैन ने कुर्सी पर बैठते अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला। आबरू ने नागवार नज़र उस पर डाली। वो आबरू के चेहरे को देखता सिगरेट पीने लगा। आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? आपने अपॉइंटमेंट ली थी? आबरू का लहजा सख्त था, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि वो पहले इस चेहरे को कहाँ देख चुकी। मुझे कहीं जाने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, वो शान बिनियाजी से सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता बोला। तो फिर आप किस सिलसिले में यहाँ आए? आबरू उसकी आंखों में देखते सख्ती से बोली, सरफराज मलिक तो यकीनन तुम जानती होगी, दोस्त है वो मेरा। शाहजैन ये कहता अपने और आबरू के दरमियान पड़े टेबल की जानिब झुका था। इसके खिलाफ जो केस तुम लड़ रही हो उसे वापस ले लो। उसकी बात पर आबरू तंज़ीह अंदाज में मुस्कुराई थी। और मैं ऐसा क्यों करूं? उसकी इस बात पर शाहजैन के लबी मुस्कुराहट में ढले। मैंने सुना है कि अच्छी वकील हो तुम और अभी कैरियर शुरू हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं, खामखा इस मामले में क्यों टांग अड़ा रही? इस बार शाहजैन का लहजा सख्त। आबरू ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि शाहजैन ने हाथ उठाते उसे बोलने से रोका।
میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، شاہزین یہ کہتا دوبارہ ٹیبل کی جانب جھکا تھا۔ جب تم سے بڑے وکیل اس کیس کو لینے کو تیار نہیں تو تم نے اس کیس کو لینے کی حامی کیوں بھری؟ بہتر یہی ہے کہ تم یہ کیس واپس لے لو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شاہزین نے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو زمین پر پھینکتے اسے اپنے سیاہ جوتوں سے مسلا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ ابرو کے لہجے میں غصہ تھا، اس بار اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ یہ تو تمہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو اور اس کیس کو واپس لے لو۔ وہ بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کسی صورت یہ کیس واپس نہیں لوں گی، ابرو نے سختی اور اٹل لہجے میں کہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اپنا جوتا دوبارہ اس سگریٹ پر مارتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ پیچھے کھڑی آبرو پاس پڑی فائل اٹھا کر زور سے ٹیبل پر مارتے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ صالحہ بیگم اسبا کی ہمراہ اس وقت اسٹور میں موجود تھیں۔ وہ دونوں سارا سامان خرید کر اب کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اس وقت اسٹور میں بہت رش تھا، ہر جانب لوگ اپنی ضروریات کا سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ امی آپ ادھر ہی رہیے گا، میں ابھی آتی۔ اسبا صالحہ بیگم کو کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی کرسی پر بٹھاتے سامان ان کے قریب رکھتے بولی تھی۔ جلدی آنا اسبا، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ صالحہ بیگم کرسی پر بیٹھتے بولی۔ ان کی بات پر اسبا اس بات میں سر ہلاتے ایک جانب چلی گئی تھی۔ صالحہ بیگم کو معلوم تھا کہ وہ اس وقت کہاں گئی تھی۔ وہ ہر بار جب بھی اسٹور آتی تو اپنی جمع کیے پیسوں سے اپنے لیے پینٹنگ کا سامان خریدتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی پینٹنگ کی شوقین تھی اور اللہ نے اسے ہنر بھی عطا کیا تھا۔ صالحہ بیگم اسی کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر سامنے سے آتی ایک عورت پر پڑی تھی۔ صالحہ بیگم نے بہت غور سے ان کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ چہرہ انہیں شناسا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک اس کی قطعی آنکھیں دیکھتے ان کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور ان کے لب بے ساختہ ہلے تھے۔ سبرینا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ان کی آواز پاس سے گزرتی سبرینا تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ سبرینا، انہوں نے دوبارہ بلند آواز میں پکارا۔ اس بار اپنا نام سنتے سبرینا نے ان کی جانب دیکھا۔ سبرینا کو اپنی جانب دیکھتے صالحہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبرینا کو صالحہ بیگم کو پہچاننے میں محض چند لمحے لگے۔ وہ آگے بڑھتے ان کے قریب آئی تھی۔ صالحہ یہ تم ہو؟ وہ ان کے قریب پہنچتے بولی۔ ہاں سبرینا، یہ میں ہوں صالحہ بیگم مسکراتے بولی اور سبرینا کے گلے لگ گئی تھیں۔ وہ دونوں آج بہت لمبے عرصے بعد دوبارہ ملی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سبرینا کہ آج اتنے عرصے بعد ہم دوبارہ مل رہے ہیں، صالحہ بیگم نم آنکھیں لیے بولی۔ ان کی اس بات پر سبرینا کی آنکھوں میں بھی نمی در آئی تھی۔ تم کیسی ہو صالحہ؟ سبرینا صالحہ بیگم کا جھریوں زدہ چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، سبرینا تم کیسی ہو؟ صالحہ بیگم نے یہ کہتے سبرینا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں صالحہ، سبرینا مسکراتے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوتی، اسبا کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ امی، وہ صالحہ بیگم اور سبرینا کی جانب دیکھتی بولی۔ اس کی آواز پر صالحہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا ہے اسبا، میری بچپن کی دوست، صالحہ بیگم سبرینا کی جانب دیکھتی بولی۔ ان کی اس بات پر اسبا کے دماغ میں صالحہ بیگم کچھ دن پہلے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھتے سبرینا سے سلام کیا۔ یہ میری بیٹی ہے اسبا، صالحہ بیگم نے اس کا تعارف کروایا۔ کچھ دیر وہ مزید وہاں کھڑی باتیں کرتی رہی۔ میرے ساتھ چلو صالحہ، میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتی، سبرینا اسبا کو پاس پڑا سامان اٹھاتے دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، آپ کو خواہ زحمت ہوگی، ہم چلے جائیں گے، اسبا مسکراتے بولی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے بھی اس بہانے میں صالحہ کا گھر بھی دیکھ لوں گی، سبرینا نے مسکراتے کہا، جس پر صالحہ بیگم کے اشارے پر اسبا خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھتے صالحہ بیگم کے گھر کی جانب گامزن تھے۔ صالحہ بیگم نے گھر کے سامنے پہنچتے سبرینا کو مخاطب کیا۔ سبرینا، میرے ساتھ اندر چلو، صالحہ بیگم نے گاڑی سے اترتے کہا۔ نہیں صالحہ، میں پھر کبھی۔ سبرینا، میں انکار نہیں سنوں گی، وہ سبرینا کی بات کاٹتے بولی، جس پر سبرینا نے مسکراتے سر جھٹکا اور ڈرائیور کو اطلاع دیتے ان کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ وہ صالحہ بیگم کے ہمراہ لاؤنج میں پہنچی جہاں اس کی ملاقات خرم سے ہوئی، جو ان کو سلام کرتے اسبا کے پیچھے کچن میں چلی گئی تھی۔ آؤ سبرینا بیٹھو، صالحہ بیگم سبرینا کو کہتے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ رتبہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی جس میں جوس کے 2 گلاس موجود تھے۔ اس نے سبرینا کو سلام کرتے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور واپس چلی گئی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھی سبرینا اور صالحہ بیگم اپنے بچوں کا ذکر کرتے اپنے ماضی میں بیتے خوشگوار دنوں کو یاد کر رہی تھی۔
तुम तो कराची रहती थी सबरीना, फिर लाहौर कैसे आना हो? बातों ही बातों में सौलिया बेगम के किए जाने वाले सवाल पर सबरीना के चेहरे का रंग बदला, मगर वो अपने आप पर काबू पा गई थी। तुमसे मुलाकात मेरे मुकद्दर में लिखी थी, इसीलिए मैं लाहौर आ गई, वो मुस्कुराते हुए बोली। और वही कहानी जो दुनिया को अपने माजी के बारे में सुनाती थी, सौलिया बेगम के गोश गुजार कर दी। वो इन्हीं बातों में मसरूफ थी कि बाहर बेल की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया था। कुछ देर बाद हुर्रम के हमरा आबरू लाउंज में दाखिल हुई। वो आगे बढ़ते सौलिया बेगम और सबरीना को सलाम करते उनके पास से गुजर उनके पास बैठ गई थी। ये मेरी बेटी है आबरू, सौलिया बेगम आबरू की जानिब देखते हुए बोली। ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा भी है। अपने अब्बू के जाने के बाद इसने बिल्कुल बेटों की तरह इस घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। सौलिया बेगम की बात पर आबरू मुस्कुराई, जबकि सबरीना सताइशी नज़रों से आबरू को देखने लगी। ताशमीन सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और लॉन की जानिब भागा, क्योंकि इस वक्त अमूमन अम्मू जान लॉन में मौजूद होती थी, मगर आज लॉन खाली था। खाली लॉन को देखते एकदम कुछ याद आया, जिस पर उसने अपने कदम लाउंज की जानिब बढ़ा दिए थे, जहाँ इस वक्त अम्मू जान मौजूद थी। वो इस वक्त सोफे पर बैठी थी, उनकी गोद में वो नन्ही गुड़िया मौजूद थी, जबकि उनके दाएं जाने पड़े सोफे पर हलीमा बैठी थी और सामने बिछे कारपेट पर बहुत सारी छोटी छोटी बाइक्स अपने इर्द गिर्द फैलाए जावियार खेलने में मसरूफ था। ताशमीन ने दाखिल होते ही सलाम किया, इस पर वो सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आओ ताशमीन, इधर आओ, अम्मू जान ने उसे देखते मुस्कुराते अपने पास बुलाया था, जिस पर ताशमीन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनके करीब चला आया। यहाँ बैठो। अम्मू जान ने उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया, जिस पर वो खामोशी से उनके साथ बैठ गया था। उनकी ये कार्रवाई कारपेट पर बैठा जावियार बहुत गौर से देख रहा था। ताशमीन ने एक नज़र जावियार की जानिब देखे अपने हाथ में मौजूद कार्ड्स अम्मू जान की जानिब बढ़ा दिए थे, जिन्हें अम्मू जान ने आंखों में उलझन लिए थाम लिया था। ये क्या है ताशमीन? उनके सवाल पर ताशमीन के ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उसकी नज़र पास बैठी हलीमा पर पड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ताशमीन कंफ्यूज होते खामोश हो गया था और कुछ आगे बढ़ते अम्मू जान के कान में अपनी सारी कहानी कह दी। उसने ये कार्ड्स अपने दो दोस्तों के लिए बनाए थे, जो उसके ख्याल में उसके हम उम्र थे, लेकिन दर हकीकत तो उसके दोनों दोस्त उससे बहुत छोटे थे, जो भी ये कार्ड्स पढ़ने के काबिल भी नहीं थे। इसीलिए ये कार्ड उसने इमानत के तौर पर अम्मू जान के हवाले कर दिए। उसकी बात पर अम्मू जान हंसने लगी और हंसते हुए सारी बात हलीमा को बताने लगी, जिस पर ताशमीन ने बहुत हैरत से अम्मू जान को देखा। उसने वो सारी बात हलीमा से छुपाने के लिए ही तो उनके कान में कही थी, मगर अम्मू जान ने उसका राज नहीं रखा। अम्मू जान की बात सुनते हलीमा हंसने लगी। थैंक यू लिटिल बॉय। हलीमा ने आगे बढ़ते ताशमीन के गाल खींचे, जिस पर ताशमीन के गाल बेख्तियार गुलाबी हो गए थे। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले कि वो उठकर वहाँ से भाग जाता, अम्मू जान ने उसे मुखातिब किया। ताशमीन, अपनी छोटी बहन को नहीं पकड़ोगी? वो नूरे फजर की जानिब देखते बोलने लगी। उनकी बात पर ताशमीन ने नूरे फजर की जानिब देखा था, जो अपनी आंखें खोले ताशमीन को ही देख रही थी। उसकी नीली आंखें बहुत मासूम और शफाफ थीं। उसने हाथ आगे बढ़ाते नूरे फजर को पकड़ना चाहा कि दो सुरमई आंखें, जो तब से ये सारे मंजर अपनी आंखों में कैद कर रही थीं, अपनी जगह छोड़ उठते उसकी जानिब आई थी। लीव हर, शी इज़ माई सिस्टर। जावियार की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो अपनी आंखों में गुस्सा और माथे पर बल डाले ताशमीन की जानिब देख रहा था। उसकी इस हरकत पर अम्मू जान और हलीमा दोनों हंसने लगी, जबकि ताशमीन की कन्फ्यूजन में और इजाफा हो चुका था। हलीमा ने एक नज़र ताशमीन के चेहरे पर डाली, जावियार को अपनी जानिब बुलाया, जिस पर जावियार ने अपनी माँ की जानिब देखा, मगर अपनी जगह पर खड़ा ताशमीन को घूरता रहा। जावियार, कम हियर। हलीमा के दोबारा बुलाने पर वो कदम उठाता हलीमा के पास गया था और उसकी गोद में जा बैठा। कुछ देर हलीमा उसे प्यार से कुछ समझाती रही, जिसका जावियार पर कोई असर ना हुआ, और वो गुस्से से हलीमा की गोद से उठता वापस अपनी बाइक्स के साथ जा बैठा था, मगर जाते हुए गौसीली नज़र ताशमीन पर डालना नहीं भूला। कुछ देर ताशमीन यूं ही नूरे फजर को अपनी गोद में लिए बैठा रहा कि अचानक नूरे फजर रोने लगी थी, जिस पर सबसे पहले जावियार उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। लाओ ताशमीन, इसे मुझे दे दो, इससे पहले कि उनका डॉन भाई दोबारा यहाँ आ जाए। अम्मू जान ने जावियार को देखते ताशमीन को मुखातिब किया था, जिस पर ताशमीन ने नूरे फजर को अम्मू जान की गोद में डाल दिया। अचानक जहन में ख्याल नमूदार होने पर वो भागता अपने पोर्शन में गया। उसकी ये कार्रवाई लाउंज में मौजूद अम्मू जान और हलीमा समेत जावियार ने भी देखी। कुछ देर बाद वो दोबारा लाउंज में दाखिल हुआ। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी स्याह रंग की बाइक थी। वो कदम उठाता जावियार के करीब आया और कारपेट पर बैठ गया था। ताशमीन को अपने करीब आता देखकर जावियार ने वो तमाम बाइक्स अपने मजीद करीब कर ली थी, जैसे डरता हो कि ताशमीन उसकी बहन की तरह ये बाइक्स भी उठा लेगा।
اس کی اس حرکت پر تاشفین مسکرایا اور اپنا ہاتھ جس میں وہ بائک موجود تھی زاویار کی جانب بڑھا دیا تھا۔ تاشفین کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کی بائک دیکھتے زاویار نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بائک اٹھا لی اور آنکھوں میں چمک لیے وہ بائک کو دیکھنے لگا تھا۔ تاشفین نے اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلتے دیکھے۔ زاویار نے بائک سے نظریں ہٹاتے مسکراتے تاشفین کی جانب دیکھا اور اپنی باقی بائکس اپنے اور تاشفین کے درمیان رکھ دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر تاشفین مسکرایا تھا۔ لو، نور فجر تمہارے دونوں بھائیوں کی دوستی ہو گئی۔ اماں جان جو تب سے ان دونوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی نور فجر کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی اس بات پر پاس بیٹھی حلیمہ بھی مسکرائی تھی۔ کافی سمجھدار بچہ ہے ماشاءاللہ۔ حلیمہ کی بات پر اماں جان تاشفین کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی جو اب زاویار کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں پر ناخن پر ہلکے گلابی رنگ کی نیل پالش لگا چکی تھی۔ اب باری دائیں ہاتھ کی تھی۔ اتنے میں لاؤنج میں زاویار داخل ہوا۔ وہ اس وقت سرمئی ٹراؤزر اور سیاہ شرٹ میں موجود تھا۔ نور، اماں جان کہاں ہیں؟ زاویار نے نور کے قریب آتے سوال کیا تھا جس پر نور نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھاتے زاویار کی جانب دیکھا۔ وہ اسٹور تک گئی ہیں۔ اسے جواب دیتے وہ دوبارہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ تو پھر تم مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ زاویار کی بات پر نور نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں ابھی مصروف ہوں، فارغ ہو کر بنا دوں گی، مگر مجھے تو چائے ابھی پینی ہے، زاویار صوفے پر بیٹھتے بولا۔ تو پھر خود بنا لو۔ نور دو بدو جواب دیتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی نگاہ سامنے بیٹھے زاویار پر پڑی تھی جو بہت غور سے اس کو نیل پالش لگاتے دیکھ رہا تھا۔ نور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک بات پوچھوں نور؟ زاویار کے بولنے پر نور نے نیل پالش کو بند کرتے سائڈ پر رکھا اور اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو، تمہیں کبھی بہن کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اس کی بات سنتے نور کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے۔ یہ کیسا فضول سوال ہے زاوی؟ سوال بالکل بھی فضول نہیں، ذرا غور تو کرو۔ وہ رکا پھر بولنے لگا۔ اگر تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو تمہیں کسی لڑکی کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ اشاروں کنایوں میں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا نور سمجھ چکی تھی۔ ہاں ہوتی ہے نا، میں نے کئی بار اماں جان سے کہا ہے کہ اب آپ بھائی کی شادی کر دیں، بھابھی آ جائیں گی تو میری کمی بھی دور ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے بولی۔ صرف بھائی کی کیوں؟ میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ زاویار کی بات پر نور نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تمہاری کیوں؟ پہلے بھائی کی شادی ہوگی پھر تمہاری باری آئے گی۔ نور نے یہ کہتے اپنا رخ زاویار کی جانب کیا تھا۔ جو تمہارے بھائی صاحب کے ارادے ہیں نا، اس صورت میں تو میں کنوارا ہی مر جاؤں گا، زاویار منہ بناتا بولا۔ چاہے جو بھی ہو مگر بھائی کی شادی سے پہلے تمہاری شادی تو ممکن نہیں۔ نور دونوں ٹانگیں اوپر کرتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا بھائی کنوارا مر جائے گا اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں، زاویار لہجے میں مصنوعی خفگی سجاتے بولا۔ اس سے پہلے کہ نور کوئی جواب دیتی اماں جان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے سلام پر ان دونوں نے جواب دیا تھا۔ آئیں اماں جان بیٹھیں۔ نور نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ اماں جان کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھتے ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر زاویار بولنے لگا تھا۔ اماں جان خیریت ہے؟ آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کہیں اپنے بیٹے کا رشتہ تو طے نہیں کرائیں؟ زاویار کی بات پر اماں جان نے اس کی جانب دیکھا جبکہ نور زاویار کو گھور کر رہ گئی۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آج اسٹور میں مجھے میری بچپن کی دوست ملی، ایک لمبے عرصے بعد آج ہماری ملاقات ہوئی اور میں بھی اسی کے گھر سے آ رہی ہوں، اماں جان مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے واہ، مطلب میلے کے بجائے ایک اسٹور میں دو بچپن کی بچھڑی سہیلیاں دوبارہ مل گئیں۔ زاویار کے کہنے پر اماں جان ہنسنے لگی اور آج کی کہانی ان دونوں کو سنانے لگی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ صدیقی ہاؤس کے عین اوپر سورج اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سائمہ تائی اس وقت کچن میں موجود ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ بریانی کی خوشبو نے ماحول کو مہکا رکھا تھا۔ سائمہ تائی کچن سے نکلتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئیں اور وشما کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئیں۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتے وشما کے بستر کی جانب بڑھیں جو اس وقت خواب خرگوش کی نیند لے رہی تھی۔ وشما اٹھ جاؤ، اس کے قریب جاتے اسے اٹھانے لگی۔ ان کی آواز کا وشما پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ہنوس ہوتی رہی۔ اٹھ جاؤ وشما، دوپہر کے 2 بج چکے ہیں اور تمہاری نیند ہے کہ پوری ہی نہیں ہو رہی، وہ وشما کے اوپر موجود کمبل ہٹاتے بولی، مگر وشما ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سائمہ تائی نے تنگ آ کر اے سی کا ریموٹ اٹھاتے اے سی بند کر دیا اور ایک نظر وشما پر ڈالتے کمرے سے باہر آ گئیں۔ سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھیں جہاں جلال تایا بیٹھے فون پر کسی سے محو گفتگو تھے۔ آپ فکر مت کریں، کام ہوتے ہی میں آپ کو اطلاع دوں گا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئیں کہ ان کی سماعت سے جلال تایا کی آواز ٹکرائی تھی۔
वो आगे बढ़ते उनके साथ रखे सोफे पर बैठ गई। जी जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। ये कहते जलाल ताया ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था जलाल? साइमा ताई ने जलाल ताया की जानिब देखते पूछा। इससे पहले कि जलाल ताया कोई जवाब देते, इन दोनों की नज़र लाउंज की जानिब आते अशर पर पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों के करीब आते उसने सलाम किया और साइमा ताई के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। अशर, खैरियत? आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए? जलाल ताया उसे इस वक्त घर पर देखकर इस्तफसार करने लगे। जी अब्बू, बस तबीयत कुछ ख़राब थी। उसकी आवाज़ बोझल थी। क्या हुआ? इस बार साइमा ताई मुतफक्कर होते पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस हल्का सा बुखार है। वो साइमा ताई की जानिब देखते जवाब देने लगा। डॉक्टर को दिखाया? इसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी, बस कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो इनको तसल्ली देता बोला। कुछ देर इन तीनों के दरमियान खामोशी छा गई। अबू मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। अशर की आवाज़ पर दोनों की जानिब मुतवज्जा हूँ। कैसी बात? जलाल ताया ने अशर की जानिब देखते पूछा, जबकि पास बैठी साइमा ताई बोतल से पानी गिलास में उडेल रही थी। ये लो बेटा, पहले पानी पी लो, फिर बात कर लेना। उन्होंने गिलास उसकी जानिब बढ़ाया और दूसरे गिलास में अपने लिए पानी उंडेलने लगी। अशर ने आगे बढ़ते वो गिलास पकड़ा और होठों से लगाते पानी का एक घूंट पिया था। फिर जलाल ताया की जानिब देखते बोलने लगा, जो उसी की जानिब देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप सौलिया चची से मेरी और आबरू की रुखसती की बात करें। अशर की बात पर साइमा ताई जो पानी पी रही थी खांसने लगी। जलाल ताया और अशर उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। क्या कहा तुमने? साइमा ताई की आवाज़ में हैरानी और गुस्सा दोनों शामिल थे। यही कि अम्मी आप मेरी और आबरू की शादी की तैयारियां करें। अशर को मालूम था कि साइमा ताई उसकी बात की मुखालफत करेंगी, इसीलिए उसने ये बात जलाल ताया के सामने की थी ताकि वो उन्हें संभाल सकें। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया अशर? क्यों अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? साइमा ताई की बात पर अशर भी सख्ती से बोला। मैं तुम्हें कह रही हूँ, उस लड़की को तलाक दे दो और तुम उसके रुखसती का इरादा किए बैठे हो। साइमा ताई की बात पर जलाल ताया ने गुस्सीली नज़र उन पर डाली। खामोश हो जाओ साइमा। उनकी आवाज़ में तंबीह थी। आप हर बार मुझे चुप नहीं करवा सकते जलाल, पहले तो मैं। बस साइमा, एक लफ्ज़ और नहीं। जलाल ताया की बुलंद आवाज़ पर साइमा ताई खामोश हो गई। वो जलाल ताया अशर की जानिब देखते बोलने लगी। ठीक है अशर, मैं सौलिया से बात करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। जलाल ताया की बात पर अशर की आंखों में उलझन उभरी थी। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद आबरू अपनी जॉब छोड़ देगी। जलाल ताया की बात पर अशर ने बोलने के लिए लब खोले, मगर न जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि वो बोलते बोलते खामोश हो गया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जलाल ताया अशर की जानिब देखते बोलने लगी। नहीं अब्बू, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप बस जल्द अज जल्द सौलिया चची से रुखसती की बात करें। ये बात अशर ने साइमा ताई की जानिब देखते कही, जो इस वक्त आंखों में तैश लिए बैठी थी। अशर ये कहता उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब चला गया। उसके जाने पर जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए ही थे कि उनकी समात से साइमा ताई की आवाज़ टकराई थी। जलाल, पहले तो मैंने आपकी बात मान ली, मगर इस बार मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। वो शदीद गुस्से में बोली थी। जलाल ताया उनकी बात को नज़रअंदाज करते अपने कमरे की जानिब चले गए, जबकि साइमा ताई गुस्से से तिलमिला रही थी। इतने में इमाद लाउंज में दाखिल हुआ। अम्मी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो साइमा ताई के गुस्से भरे चेहरे को नज़रअंदाज करते बोलने लगा, जिस पर साइमा ताई ने गुस्सीली नज़र उस पर डाली। कोई फजूल बात मत करना इमाद, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। वो इमाद की जानिब देखते बोली। उनकी बात पर इमाद एक लम्हे को रुका, मगर फिर बोलने लगा। अभी आप सौलिया चची से मेरे और इसबा के रिश्ते की बात करें। वो एक ही सांस में पूरी बात कह गया था, मगर उसकी बात सुनते साइमा ताई का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। तुम दोनों भाइयों का दिमाग खराब हो गया है? तुम दोनों को उन लड़कियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता? दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं क्या? साइमा ताई एकदम खड़ी होती चिल्लाने लगी। न जाने कौन सा जादू कर दिया है इन जादूगरनियों ने कि तुम लोगों को इसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो गुस्से से चिल्ला रही थी। अम्मी, अम्मी। इमाद उन्हें पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। मगर एक बात तुम दोनों याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ इन लड़कियों को इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो दोबारा गुस्से से चिल्लाती वहाँ से चली गई, जबकि पीछे बैठा इमाद उनके इस शदीद रद्द-ए-अमल पर हैरान था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।